Namaskar, my all dear student of class 12. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of your English syllabus for this session. In this video, I am covering the question answer part of the third level. We have completed the explanation and the new vocabulary of this chapter. Now we will cover the question answer. I have kept some textual questions जो आपकी बुक में है, textual questions वो मैंने cover किए हैं. Let's move on. Question number 1. What does the third level refer to? The third level is the word somewhere that is referring here between desire and dream. So third level is the word that is between, किसके बीच में है? Desire and dream and the reality. It is a word of fantasy that we create for ourselves and occasionally seek to escape to. Most of the time it is a picture of the simple past of the forefathers who we believe were happier. It is an escapist word which one weaves around to be off the current day problems, worries, anxieties and टेंशंस. तो ये जो वर्ड है, ये जो थर्ड लेवल है, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू पोइट एंड अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर. ये जो वर्ड है ये बीच में है, किसके बीच में? डिजायर और ड्रीम, जो हमारी इच्छाएं होती हैं और जो रियलिटी होती है उनके बीच का एक वर्ड होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता. मतलब डिजायर भी कोई चीज़ है, ड्रीम है, एक रियल है, लेकिन उसके बीच का जो वर्ड होता है दैट इज नॉट हैविंग नो एग्जिस्टेंस. ये जो वर्ड है ये फैंटेसी है. फैंटेसी इज कॉल्ड दैट वी कैन इमेजिन इन आवर माइंड ओनली एंड क्रिएट अ सेल्फ ओकेजनली, जो हर सब लोग क्रिएट करते हैं. ओकेजनली इज कॉल्ड कभी कभी. हर आदमी कभी ना कभी परेशान हो जाता है, वो अपने एक सेल्फ क्रिएटेड वर्ड में चला जाता है एंड कभी कभी हमको एक पिक्चर दिखाई देती है जो सिंपल पास्ट. किसका देखते हैं हम लोग? फोर फादर, कि भाई हमारे जो फादर थे, जो हमारे ग्रैंड फादर थे, वो कितने हैप्पी थे, कितने रिलैक्स थे और आज हमको इतनी सारी परेशानियां हैं. ये सारी चीज़ें हमको कभी कभी सोचने को मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड ये एक एस्केपिस्ट का वर्ड है. एस्केपिस्ट इज कॉल्ड जो बचना चाहता है. एस्केप इज कॉल्ड बचना एंड एस्केपिस्ट मीन्स जो बचना चाहता है. तो जो एस्केपिस्ट अपना ये वर्ड क्रिएट करते हैं वो एक अपने दिमाग में एक बुल लेते हैं. किस तरह का? करंट डे की जो प्रॉब्लम्स हैं और जो वरीज हैं, जो एंग्जाइटीज़ हैं, जो टेंशन है, इनसे दूर जाना चाहते हैं. वो अपने एक सेल्फ वोवन वर्ड में जाना चाहते हैं, उन सब से दूर, पीस के लिए. ठीक है, तो थर्ड लेवल उसी जगह को रिप्रेजेंट करता है. Would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level to buy tickets to Galesburg for himself and his wife? Then time travel is the temporary relief that a man seeks to escape from rush of his present existence. It was a word of fantasy and Charlie too had created. So he exchanged all his savings for 1894 currency to buy tickets from the third level to Galesburg, Illinois. However, he could not find the third level again as it did not exist. So, क्यों वो जाना चाहता था? हाँ, वो बिल्कुल जाना चाहता था थर्ड लेवल पर वापस, क्योंकि उसको गेल्सबर्ग इलियनॉइस जाना था. दिस इज़ द प्लेस वेयर ही वेंट टू स्कूल, जहाँ पे उसका बचपन बीता था और वो बहुत पीसफुल जगह थी जहाँ पे उसके दादाजी भी रहते थे, उसका घर था. लेकिन अब वो शहर में आकर रहने लगा है जहाँ पे वरीज हैं, कॉम्पिटिशन है, एंग्जाइटी है, टेंशन है, इन सबसे दूर जाना चाहता है. उसने अपनी सेविंग्स लगा दी. फर्स्ट टाइम व्हेन ही विजिटेड द करेंसी वाज नॉट एक्सेप्टेड, was being of 20th century currency. That's why he exchanged the currency and took of 18 and 19th. But even then he was not able to go back to third level again. Why? Because that word existed only in his mind, in his dream. Next question. Do you think that the third level was a medium of escape for Charlie, and why? Life today is full of insecurity, fear and worries, and time travel is man's way to escape from it. And occasionally man seeks escape into the world of fantasy and his nostalgic memories, the happier times of the past. Yes, the third label was Charlie's medium of escape from the mad rat race of the modern times. अभी अगर बोला जाए तो हाँ, वो जो थर्ड लेवल था वो उसका एक मीडियम था, एक सोर्स था. उसने कोई ऐसी चीज़ ढूंढ ली थी जहाँ पे वो बचकर जाना चाहता है. किससे बचकर जाना चाहता है? जो वरीज हैं जो ट्रबल्स हैं इस लाइफ की,
और वो जाना चाहता था अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में जहाँ पे उसकी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज थी. नॉस्टैल्जिक इज कॉल्ड रिलेटेड विद योर होम, रिलेटेड विद योर चाइल्डहुड. पुरानी जो यादें थी जिनको याद करके आप इमोशनल हो जाते हो, सेंटिमेंटल हो जाते हो, वहाँ वो उस जगह पे जाना चाहता था. एंड वो कैसा था, वो जो पास्ट था वो हैप्पियर था, बहुत प्यारा था वो, जहाँ पे उसको बहुत खुशी मिलती थी. एंड थर्ड लेवल, यस, ये उसका एक मीडियम था एस्केपिज्म का, क्योंकि वो जो यहाँ की मैड रैट रेस है, रैट रेस इज कॉल्ड द कॉमन रेस, जहाँ पे सब भाग रहे हैं उस कॉम्पिटिटिव रेस में, उससे वो दूर जाना चाहता था. Next question, what do you infer from Sam's letter to Charlie? Sam's letter shows men spinning from the simple, less harassing and a happier era. He too had found respite from the hurry and worry of modern life in the time travel. Sam had learned to transport himself into the time period of his ancestors, whose quality of life he considered was better than their present existence. सैम के लेटर से उसको क्या लगता है, मतलब आप क्या इन्फो करते हो, क्या आपने रिजल्ट निकाला, तो हम बता सकते हैं कि हाँ भाई, जो सैम का लेटर है वो बताता है कि किस तरह से ये जो हार्शिंग रियलिटीज़ हैं और हैरेसिंग मोमेंट हैं वो कितना अलग है उस हैप्पी एरा से जहाँ पर अभी सैम है. ये एक तरह से बचना है, किससे, हरी से, वरी से, वो अपने आप को जो लोग बचाना चाहते हैं इस मॉडर्न लाइफ के से, इसीलिए वो टाइम ट्रेवल में चले गए. टाइम ट्रेवल इज कॉल्ड, आप अभी 20th सेंचुरी में और एंड यू आर इमेजिनिंग योर सेल्फ टू बी इन 18 and 19. तो ये टाइम ट्रेवल हमने किया, वो ट्रैवलिंग जो विजिबल नहीं है, जिसका कोई भी व्हीकल नहीं है. तो यहाँ पर पता चलता है कि सैम ने लर्न कर लिया है ट्रांसपोर्ट करना अपने आप को, कहाँ पे, उस पीरियड ऑफ टाइम पे जहाँ पे उसके एंसेस्टर्स रहते हैं. एंसेस्टर्स मीन्स फोर फादर रहते हैं, उसके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स जहाँ पे रहते हैं, सैम ने वहाँ पे मैनेज कर लिया, मतलब सैम वहाँ पर चला गया है. एंड नाउ ये बहुत अच्छा जगह है अगर देखा जाए तो, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेटर प्लेस फ्रॉम द प्रेजेंट एग्जिस्टेंस. तो ये हमने सिर्फ रिजल्ट निकाला है, दिस इज नॉट द रियलिटी दैट आई एम टेलिंग यू. वट एवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन दैट वी आर गिविंग, कि सैम के लेटर से क्या पता चलता है, पता चलता है कि वो वहाँ पे चला गया है और वहाँ की हैप्पीनेस को वो इंजॉय कर रहा है. The modern world is full of insecurity, fear, war, worry and stress. What are the ways in which we attempt to overcome them? Man often creates in his fantasy a world which is somewhere between in his desire and reality, and often seeks respite by transporting himself to it mentally. Time travel is another way of overcoming stress, and we travel back to the time, to the past, which we believe was a quieter and happier era. Nostalgic memories too are often the ways to escape from the harassing present. कैसे जा सकते हैं भाई, ये पूछा गया है कि यहाँ पे फियर एंग्जाइटी है तो हम क्या कर सकते हैं और क्या क्या सोर्सेज हैं. तो ऑब्वियसली ये जो अगर मैं बताऊं, ये रियलिटी का मतलब क्या हुआ कि यू आर हियर, दिस इज द रियलिटी, यू हैव टू बी हियर टिल योर डेथ. आप नहीं जा सकते हो. वंस यू आर ओनिंग योर फैमिली, यू आर trapped or you are responsible, answerable. Okay, आपको किसी के लिए responsibility उठानी पड़ेगी, and that responsibility is not for just span of time, that is until your death. जब तक आप नहीं जा सकते हो. That's why the person are finding their fantastic, their imaginative word in their imagination only, कि बस हाँ, अब reality में नहीं जा सकते, अपनी imagination में तो हम जा ही सकते हैं ना. तो वो imaginative word में चले जाते हैं, अपने आप को transport कर लेते हैं. कैसे? mentally transport कर लेते हैं. दूसरी चीज़, एक और चीज़ है ओवरकम करने की, वो है आपकी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज. भाई हम याद कर लेते हैं जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वी स्टार्टेड जस्ट फ्लिकिंग द पेजेस ऑफ द ओल्ड एल्बम्स, देख लेते हैं हम, या अगर हमारे घर में दादी नानी हैं तो वो स्टोरी सुना देती हैं, कभी पुराने लोगों से मिलकर आ जाते हैं, एक बार अपने जो होम टाउन है वहाँ आ जाते हैं. इससे ज़्यादा हम और क्या कर सकते हैं. तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमको फियर, वॉर, वरी और स्ट्रेस से अलग करती हैं, इनसिक्योरिटी से अलग करती हैं, बिकॉज these all things are permanent and our existence in this, among all this, to lead a life is also the permanent, right? Next question, do you see an intersection of time and space in the story? Yes. Intersection is called milna. टाइम एंड प्लेस का आपने इंटरसेक्शन यहाँ पर देखा. हाँ, द स्टोरी क्लियरली शोज एन इंटरसेक्शन ऑफ द टाइम एंड स्पेस. इंटरसेक्शन
Firstly, the first two levels of Grand Central Station were located in the present time, while the third level existed in 1890s. Secondly, the Charlie and his wife Louisa live in present time, yet Charlie goes to get the currency to buy the tickets to Galesburg, Illinois of 1894. The old architecture of the platform at the third level is different from the platform of modern times. The archaic manner of the dressing by the people and the newspaper, the word dated June 11, 1894 also overlap with Charlie's real-time word and his accent. Finally, the letter that was mailed to Charlie's grandfather on 18 July 1894 highlights the intersection of time and space. तो यहाँ पे देखो कितने सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं जहाँ पर टाइम और स्पेस जो दोनों चीज़ हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं. पहला देखो, पहला कौन सा है जहाँ पर दो लेवल उसको मिलते हैं, ये प्रेजेंट का टाइम है. जहाँ पे उसको थर्ड लेवल मिलता है वो किसका टाइम हो गया, वो 80s का टाइम हो गया. उसके बाद जब वो करेंसी, जब टिकट लेने जाता है तो वो हो गया 1894 का टाइम, जहां पर प्लेटफॉर्म पर उसको क्या चीज़ दिखाई देती है, सारी चीज़ें दिखाई देती हैं जो 80s एंड 90s के मैनर में डेकोरेट होती हैं. जो पीपल थे, वहाँ के जो लोग थे, वो किस तरह से ड्रेसअप थे, वो भी उसी तरह से ड्रेसअप थे. लेकिन चार्ली आज के हिसाब से ड्रेसअप है, ठीक है. लेवल जो सेकेंड लेवल था, जो था जहाँ पे अभी अभी वो है, वो मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग आर्किटेक्चर है. और वो जो एक गलियारा, जो एक पूरी गैलरी है, उसको क्रॉस करके जब वो जाता है कॉरिडोर से, उसके बाद थर्ड लेवल आ जाता है जो पूरी तरह से किसमें आर्किटेक्चर 18 और 90s के आर्किटेक्चर्स का बना हुआ है. उसके बाद जो लास्ट वाला एक है, वो जो लेटर उसको मिलता है अपने फर्स्ट डे कवर, अपने स्टैम्प कलेक्शन में मिलता है, जिससे पता चलता है कि सैम कहाँ पर है. सैम इज़ इन देयर गेल्सबर्ग, इलिनॉइस. एंड वो लेटर भी होता है 18 जुलाई 1894 का, जबकि उसका जो स्टैम्प कलेक्शन है वो प्रेजेंट टाइम का है. तो बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जो यहाँ पे इंटरसेक्शन बता रहे हैं टाइम और स्पेस का इस स्टोरी में. बट ये हमेशा याद रखिए कि दिस इज़ ऑल इन द इमेजिनेशन ऑफ the Charlie, the protagonist. Apparent illogicality sometimes turns out to be the futuristic projection. Discuss. Beautifully the framed question. Apparent illogicality turns out the futuristic projection. Very right. Apparent is called seems. जो आज हमको illogical लग रहा है, वो कल फ्यूचर का एक क्या हो जाता है, प्रोजेक्शन हो जाता है, इन्वेंशन हो जाता है. कैसे? It is true that apparent some illogicality sometimes turns to be futuristic projection. A good number of the scientific inventions sounded ridiculous and absurd till someone brilliant minds gave them a concrete shape. Before the Wright brothers invented the first aeroplane, nobody could have dared to believe that man could fly. There are many other examples of inventions which were conceived in dreams but now are the part of everyday reality. All this emphasizes that fantasies of one point of the time that seem illogical may turn out to be revolutionary things that change the future of the mankind. It would not be far-fetched to think about the railway station fitted with the time machine devices from one era to another. It is just a matter of time. The question and the same answer. कैसे जो आपको आज बिल्कुल इलॉजिकल चीज़ लग रही है, अगर हम बहुत सालों पहले व्हेन द इन्वेंशन ऑफ द एरोप्लेन वाज नॉट देयर, राइट ब्रदर्स ने जब तक इन्वेंशन नहीं किया था तब तक क्या आदमी हवा में उड़ सकता है, क्या इलॉजिकली, क्या मतलब बेकार की बातें कर रहे हो, यही तो दिमाग में आएगा. बट नाउ सी everybody is going. The machine which is stitching the cloths, ये भी एक इन्वेंशन है, उससे पहले कोई बिलीव नहीं कर सकता था. पहले हम पैलियोलिथिक एज में everybody is wearing that ट्री बार्क या लीव्स के बने हुए पहनते थे जिनको जोड़ा जाता था. So many other inventions are there which can keep you in winters warm and keep you cool in the season of the summer. So how can maybe some brilliant mind will come up to have the kind of the trains of vehicles that can take you from one era to another era. आज हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं. मे बी सम डे विल बी देयर कि हम एक एरा से दूसरे एरा में चले जाएं. द काइंड ऑफ क्वेश्चन इज देयर, द काइंड ऑफ आंसर इज देयर. तो जो आज चीज़ें अब्सर्ड लगती हैं, मे बी वो कल के लिए एक रिवोल्यूशनरी चीज़ हो सकती है. क्वेश्चन नंबर 6. Philately helps keep the past alive. Discuss other ways in which
this is done. What do you think of the human tendency to constantly move between the past and present and the future? Besides philately, there are numerous other ways to keep the past alive. Collecting historical artifacts, paintings, statues, museum, collecting and reading the books, collecting stamps, first day covers, etc. are few ways of revisiting history. Philately is, we can say, the hobby of collecting the stamps. किसकी थी भाई हॉबी? हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प हमारे प्रोटैगनिस्ट की थी, चार्ली की थी, उसके फादर की थी, और हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी, ही वॉज ऑल्सो हैबिचुअल ऑफ कलेक्टिंग द स्टैम्प, उसको फिलैटली बोला जाता है. इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई? बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं. आप कलेक्शन कर सकते हो आर्टिफैक्ट्स, जो अलग अलग आर्टिफैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आर्टिफैक्ट्स में रिलेटेड टू एसेसरीज, इंटीरियर, उसका कलेक्शन आप कर सकते हो. पेंटिंग्स, म्यूजियम से रिलेटेड चीज़ें, स्टैचूज हुआ, कलेक्टिंग बुक्स हुआ, और स्टैम्प्स हुआ, फर्स्ट डे कवर हुआ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप कर सकते हो. मीन्स टू keep the past with you, अपने साथ रखने के लिए. Fond memories of the past are often kept alive through photographic collections. Then man seeks refuge in nostalgic memories, the happier times of the past. He transports himself to the world by traveling through the time. This is called time travel at the present. In fact, he is constantly moving between past, escape and present and फ्यूचर. और इसके अलावा फॉन्ड ऑफ मेमोरीज, फोटोग्राफी कलेक्शन हो सकता है आपका, आप फोटोग्राफी कलेक्शन कर सकते हो. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जिससे आप अपने पास्ट को अपने पास रख सकते हो. ठीक है, और ये एक तरह से जब भी आप फोटो देखते हो तो यू आर जस्ट लॉस्ट in the nostalgic memories related to your hometown, related to your forefathers, fathers, आपके बचपन से, चाइल्डहुड से रिलेटेड सबकी जो फीलिंग होती हैं वो वापस आ जाती हैं. और एक तरह से देखा जाए तो क्या कर रहे हो आप? यू आर ट्राइंग टू एस्केप. आप उन सबसे बचना चाहते हो, दूर होना चाहते हो जिससे आप फेड अप हो गए हो इस प्रेजेंट टाइम में, एंड गो टूवर्ड्स द पास्ट. This capacity to oscillate between the past, present and future is a great intellectual gift. This human tendency enables him to plan for the future in the present by reaping benefits from the past. Such a tendency helps in ensuring acceptance of the impact of important decision taken at any point of the time, learning from them. अब यहाँ पर ये इस पैराग्राफ में यहाँ पे आपको मीन्स बता दिए गए कि क्या क्या इस तरह के मीन्स और मेजर्स हो सकते हैं, मीडियम्स हो सकते हैं जिसके थ्रू आप अपने आप को, पास्ट को अपने क्लोज रख सकते हो. नाउ हियर इन थर्ड पैराग्राफ इट इज डिस्क्राइब्ड कि ये जो कैपेसिटी होती है, जो आपकी स्किल है टू ऑसिलेट, ऑसिलेट इज कॉल्ड टू जस्ट कीप ऑन मूविंग. ठीक है, कीप ऑन मूविंग और कीप ऑन ट्रांसफरिंग, आप कुछ भी बोल सकते हो. कीप ऑन मूविंग और कीप ऑन ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर. ठीक है, एक चीज़ से दूसरी तरफ जाना, वन थिंग टू अनदर. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? कभी पास्ट में, कभी प्रेजेंट में आप जो जाते हो, बिटवीन पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट. एंड दिस इज अ काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल गिफ्ट. मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने पास्ट, ठीक है पास्ट हमारा चला गया है, बट वी कैन नॉट लीव द पास्ट टोटली. ऐसे हम नहीं छोड़ सकते उसको. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको हैप्पी फील कराती हैं, जो हमको कंसोल करती हैं. एंड दीज ऑल आर द रीपिंग बेनिफिट्स. रीपिंग का मतलब काटना. ठीक है, जितने भी प्रेजेंट के जो बेनिफिट्स हैं फ्रॉम द पास्ट, वो डेफिनेटली आपके प्रेजेंट को ब्यूटीफुल बनाते हैं. तो वी cannot just take away or keep the past totally away from us. And this is the impact, very important decision whenever we are taking. A past helps us a lot. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, so many memories, so many motivational stories are there, so many, we can say, the evidence, visible evidence, alive evidences are there which are helping us to take the important decision at the point of time, and we can also learn a lot about so many things from them. Next question, you have read Adventure by Jayant Narlikar in Hornbill Class 11. Compare the interweaving of fantasy and reality into stories. Adventure हमने पढ़ा था, हमारी हॉर्नबिल में एक चैप्टर था, जयंत नार्लिकर ने लिखा था, जिसमें जो हमारे जो मेन प्रोटैगनिस्ट होते हैं
वो एक टाइम, उसमें भी टाइम ट्रेवल का था, उसमें वो एक टाइम से दूसरे टाइम में चले जाते हैं व्हेन ही वाज अनकॉन्शियस, ठीक है। गंगाधर राव पंत ऐसी कुछ नाम था उसमें। प्रोफेसर गाय टुंडे वाज द मेन कैरेक्टर, जो चले जाते हैं, उनका कार एक्सीडेंट होता है एंड ही वेंट in coma or unconscious stage for 2 days, and in that 2 days he visited Mumbai and everywhere. तो वो जो फैंटेसी हमने पढ़ी थी, ये उस दोनों कैसी वीव की गई हैं, फैंटेसी रियलिटी इन दोनों स्टोरीज में, वो हमको बताना है। In adventure, Jayant Narlikar expressed that many words exist simultaneously, though they appear to be separated by time. He conveyed that the other word also existed and prospered with the word we are aware of. ना उनके अकॉर्डिंग क्या था कि दो वर्ड, दो बहुत सारे अलग अलग वर्ड वो एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब आप अभी यहाँ पे हम कुछ कर रहे हैं, दूसरे वर्ड में इसी टाइम पे कोई कुछ और कर रहा है, तो वो वर्ड एग्जिस्ट करता है, एंड द अदर वर्ड ऑल्सो एग्जिस्टेड। उन्होंने कन्वे किया ये चीज़, एंड ये चीज़ जो उन्होंने प्रोस्पेयर्ड की विद द वर्ड वी आर अवेयर ऑफ। प्रोस्पेयर्ड जो हमने मतलब ये फील किया, ये रियलाइज किया कि हाँ वो जिस वर्ड में गए थे, या दूसरा जो वर्ड है जो उन्होंने इस वर्ड में रहते हुए फील किया था, हाउ कैन वी मेक रियलाइज और बिलीव ऑन दैट? द काइंड ऑफ आर्टिफैक्ट्स और द काइंड ऑफ एविडेंस ही ब्रॉट फ्रॉम देयर। प्रोफेसर गाय टुंडे की जो पॉकेट में एक जो उनका बुक का जो पेज रह जाता है, ठीक है, कि उसमें मुगल और जिसकी अफगानियों की जो लड़ाई हुई थी, वो जिस बुक के बारे में पढ़ रहे थे, उसका जो बुक का पेज था दैट वाज स्टिल देयर इन हिज पॉकेट। तो ये सारी चीज़ें हमको बिलीव करने पर मजबूर कर देती हैं कि हाँ कोई दूसरा वर्ड भी उसी टाइम पे एग्जिस्ट करता है। बट इन द थर्ड टाइम चार्ली, अ यंग न्यूयॉर्क commuter wandering Grand Central Station by accident finds a gateway that leads to the past of 1894. Charlie attempts to escape the rat race by buying a one-way ticket to his childhood town of Galesburg, Illinois, but circumstances forced him to postpone his plan to escape to the past. यहाँ पे वो बता रहे हैं, यहाँ पे जयंत नार्लिकर कन्वे कर रहे हैं, वो चीज़ बता रहे हैं, वो प्रूफ भी दे रहे हैं कि भाई दूसरा वर्ड एग्जिस्ट करता है सेम टाइम। यहाँ पे चार्ली को बाय एक्सीडेंट वो जो दूसरा गेल्सबर्ग इलिनॉइस था वो मिल गया था। गेल्सबर्ग इलिनॉइस वो जाकर विजिट भी करना चाहता था, वहाँ से एविडेंस भी लाना चाहता था, एंड दिस वाज द एविडेंस। अगर वो वहाँ पर टिकट खरीद लेता तो मे बी वी कैन से द स्टोरी कैन टेक अ न्यू टर्न, बट ही वॉज नॉट हैविंग द सेम करेंसी, दैट्स वाई ही वॉज अनेबल टू बाय द टिकट। अदरवाइज उसकी पॉकेट में भी टिकट होते कि गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए देखो मैंने टिकट खरीदे थे, एंड दिस प्रूव्स दैट आई वॉज देयर वंस, मैं भी वहाँ पे था। लेकिन वो ही वॉज unable to buy the ticket because of the new currency, 20th currency, तो उसके पास evidence नहीं बचा, ठीक है। I hope these all questions has cleared the concept of the chapters more for you. So more and more questions are there for extra preparations you can do at your own, but while taking the revision I'll just keep a look so that I can bring more and more extra questions for you. Okay, with this I'm ending this video here. We'll meet with the next video next time. Take care till then.